ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। आज कलगीधर बादशाह सच्चे पिता गुरु गोविंद सिंह जी का पावन गुरु पर्व है। सारे जगत को लख लख बधाई हो। किसी महान शख्सियत के बारे में हम उतना ही बता सकते हैं जितना हमने पढ़ा हो, परंतु गुरु साहब के बारे में सारा जगत इतना बखान कर सकता है कि हम पूरी ज़िंदगी अब उनके गुणों का बखान करते रहें तो हमें पूरा बखान करने का मौका नहीं मिल पाएगा। गुरु जी के बारे में अल्लाह यार खां जोगी, जो एक महान कवि रहे हैं, वो कहते हैं कि सारे समुंदर को स्याही बना लें और सारे दरख्तों को काट कर कलम बना लें और सारी उम्र गुरु गोविंद सिंह जी के गुणों का बखान करें तो भी हम पूरी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुर के लिखूं बसत कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला गुलबहर को देखे, साहिल को या मझधार को या लहर को देखे। काल समूह प्रसन्न फिरे जग, सतर सभे अवलोक जपेंगे। इस दे निशाने दी पूर्ति लई, करता पुरख दे हुक्म अनुसार प्रगटियां गुरु नानक जोत ने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਣੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਤੇ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਖ-ਪੱਖ ਵਿਚਿਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਸਾਰ ਪੀਰ ਭਿੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰਵਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮੀ ਨੂਰਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਦੁਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਾੜਾ ਪਰਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਸਾਜ ਤਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਚਿੱਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੁੰਚੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲੋਹ ਕਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਗ ਸਰਵਲੋਧੀ ਭਗਵਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਸਰਵੰਸ਼ ਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਨੀ ਸ਼ਾਹ, ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਵਿਚਿਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਿਉ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਭਾਈ ਘਨਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੀਰਤਨ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਬਿਦਾਵਾਂ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਦਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਾरों साहबजादे शहीद करवा के कहना इन पुत्रन के शीश पे, उनके कुर्बानी ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੰਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਲੇਖੇ ਲਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜੁਕ रेहान कुन रहीम, उन्हां दा निशान जब मंजिले मकसूद, धर्म चलावण संत तो वारण, दुष्ट सबन को मूल उपारण, उन्हां दा जफरनामा वाहिगुरु जी की फतेह दा ऐलान नामा, उन्हां दा रब नू अद्वितीय अर्जनामा बेनती चौपई, उन्हां दी पूजा अकाल, उन्हां दी धुनी तू ही तू ही तू ही, उन्हां दा परचा ग्रंथ दा दर्शन दी लालसा, खालसे दे दर्शन, उन्हां दी अरदास सरबत दा भला, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸਤਕਾਰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੀਰਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਵੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਣਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਹਿਤ ਦੀ ਪਰਫਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ 5 ਕਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ
चार कुरैता उनादा ऐलान एक बिना मन एक न आने उनका वारिस और विरासत सत श्री अकाल पुरख की खालसा उनकी आत्मा गुरु ग्रंथ साहब विच उन्हां दा शरीर गुरु पंथ विच वो मालिक दोनों जहाना दा सब विचित्रमयी सब विचित्र ऐसो कौन भलीरे। ऐसे गुरुदेव बारे यही कहा जा सकता है कि सुबन चरित्र चित्र बानक बने विचित्र पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। ऐसे गुरुदेव पिता दे चरणा विच यही जोदड़ी हो सकती है। हे सदगुरु सच्चे पातशाह चादर मैली साबुन थोड़ा जद देखा तब रोआ बहुता दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा धोआ दागा दी कोई कीमत नाही मैं क्यों कर हाछी हुआ श्री साहब मोहे दर्शन देवो मैं सच्चे साबुन धोआ। कलगीधर दशमेश पिता सतगुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी व माता गुजरी जी थी। गुरु साहब के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी आसाम और बंगाल में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। बाल्यकाल में ही गुरु जी ने अनेक ज्ञानियों के भ्रम तोड़कर उन्हें सद्गुरु का पाठ सिखाया। 6 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ गुरु जी हिमाचल में चकननकी चले गए, जो आज अनंतपुर साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 29 मार्च 1676 में गुरु गोविंद सिंह जी को 10वां गुरु बना दिया गया। 1684 में गुरु जी ने एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था वार श्री भगवती जी की। 13 अप्रैल 1699 को कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को आज के स्वरूप को प्रदान किया। गुरु जी ने सिखों को 5 ककार धारण करने के लिए कहा है: केश, कंगा, कृपाण, कड़ा और कछहरा। साथ ही गुरु जी फरमाते हैं कि शराब तो एक पीढ़ी को नुकसान पहुंचाती है परंतु तंबाकू पूरे वंश को नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए खालसा को तंबाकू के लिए निषेध किया गया। गुरुजी ने कुल 14 युद्ध लड़े परंतु कभी भी पहले वार नहीं किया, किसी को बंदी नहीं बनाया और न ही खालसा फौज ने कभी दूसरे पक्ष की महिलाओं के साथ कोई अभद्रता की। गुरु साहब के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह थे। मुगल फौज ने अनंतपुर साहब के किले को चारों तरफ से घेर लिया और करीब 6 महीने तक सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी साहब अनंतपुर साहब के किले में थे। उसके बाद मुगल फौज ने कुरान की कसम खाकर कहा, यदि आप किला खाली कर देते हैं तो किसी सिख को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। गुरु साहब ने पंच प्यारे और सिखों से सलाह करने के बाद वो किला खाली कर दिया, परंतु मुगल फौज ने पीछे से उन पर हमला किया जिसमें बहुत से सिख शहीद हो गए। 1704 में चमकौर का युद्ध हुआ जिसमें 40 सिखों ने 10 लाख मुगल फौज का सामना किया। इतिहास में होने वाला ये सबसे बड़ा युद्ध है, जिसमें बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए और सरहंद में छोटे साहबजादा बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को जिंदा नीहा विच चुनवा दिया गया। 5 प्यारों के आदेश पर गुरु साहब मुक्तसर जाकर गुरु ग्रंथ साहब को स्थापित किया और अपने आप को आदि श्री ग्रंथ साहब में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए समर्पित किया, जो कि 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने संकलित किया था। अपने लेखन संग्रह को गुरु जी ने दशम ग्रंथ नाम दिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हम जो भी हैं गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके कारण ही हैं। मुक्तसर में गुरु गोविंद सिंह जी पर मुगल सेना ने षड्यंत्र से हमला करवाया, जिसमें गुरु जी के दिल के पास गहरा घाव हो गया था। फिर एक दिन ज़्यादा खून रिसने की वजह से गुरु जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। 6 अक्टूबर सन 1708 में गुरु साहब ने 5 पैसे और एक नारियल चढ़ाकर गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु घोषित कर दिया और उन्होंने कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी नंदेड़ चले गए और नंदेड़ जाकर 21 अक्टूबर
1708 में अपनी देह त्याग दी। उनका पूरा जीवन बलिदानों से भरपूर था। सरवंशदानी गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।